Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 27, we are going to learn a new problem, that is egg dropping problem. ठीक है, so ये kind of एक puzzle था, ठीक है, और उसको कैसे तुम उस puzzle को recursion का यूज़ करके या फिर उसमें DP का यूज़ करके कैसे solve कर सकते हो, वो तुम्हारा एक प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मेन चीज़ इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है। ठीक है, मेन चीज़ प्रॉब्लम हमें स्टेटमेंट समझना है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें जैसे ही क्लियर हो गया कि हमें प्रॉब्लम में एग्जैक्टली हमसे पूछ क्या रहा है, जैसे ही वो क्लियर हो गया, इसका रिकर्जन बहुत ईजी है और उसको मेमोराइज करना तो वैसे भी ऑब्वियसली ईजी होता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एग्जैक्टली प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, सेकेंड थिंग उसके बाद उसका रिकर्जन लिखने वाले। ठीक है, फाइन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट अस सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is Pay After Placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's. So what is this program exactly? So they will teach you for 6 months. They will make you a full stack developer by teaching you full stack development, and you can see here also that application for full stack development course for September batch is open also right now. So they will make you a full stack developer, and after that they will also get you placed in these companies, and for minimum of 5 lakh CTC. Okay, and you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. Second program they have for you is Launchpad Initiative, under which they have different courses especially designed for you. Their different courses are for like development and competitive programming and C++, Java. So they have different courses and especially designed for you, and they are absolutely free. If you want to opt any course, you can just come to newtonschool.co, log in or sign up for free and start learning, and you will also get certificates after the completion of any course. Okay, so just come to newtonschool.co, log in or sign up and check their both programs, Pay After Placement and Launchpad Initiative. Second thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we are posting regular videos, and we have different playlists for you, like for DP, for C++, from basic to advanced, and for DSA, for JavaScript, everything. Just go to YouTube, subscribe this channel and get regular updates for videos. Now let's see our today's video, दैट इज एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो एग्जैक्टली इसका पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं. हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है ये देखते हैं. हमें एक चीज गिवन है ई, दैट इज नंबर ऑफ एक्स. सेकेंड चीज हमें गिवन है के. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. ठीक है, और हमें एग्जैक्टली बताना क्या है इस प्रॉब्लम में. हमें ये दोनों चीजें गिवन है. हमें ये बताना है वर्स्ट केस में हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे. मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ ड्रॉपिंग एग टू गेट टू नो. मिनिमम नंबर, ध्यान से सुनना ही, क्योंकि हमें मेन चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझना है. हमें ये बताना है इस प्रॉब्लम में, दैट इज इन वर्स्ट केस हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे टू गेट टू नो कि हमारा क्रिटिकल फ्लोर कौन सा है. क्रिटिकल फ्लोर, क्रिटिकल फ्लोर से तुम्हें कुछ कुछ इंट्यूशन मिल रहा होगा. क्रिटिकल फ्लोर, और यू कैन ऑल्सो से इट कि कौन से फ्लोर से तुम्हारा एग जब ड्रॉप किया जा रहा है तो वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, सपोज ये तुम्हारी अगर बिल्डिंग है और ये उसके फ्लोर्स हैं. ठीक है, तो वो पहला फ्लोर जहां से तुमने एग ड्रॉप किया और वो ब्रेक नहीं हुआ, अगर तुम ऊपर से आ रहे हो. ठीक है, सपोज ऊपर से आए और इस फ्लोर से तुमने एग ड्रॉप किया, जमीन में आके ब्रेक हो गया. इस फ्लोर से किया तुमने, जमीन पे आके ब्रेक हो गया. इस फ्लोर से किया, जमीन पे आके ब्रेक हो गया. सपोज ये वाला फ्लोर था, इससे तुमने ब्रेक किया पर जमीन पे आके ये ब्रेक नहीं हुआ. ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज योर, और यू कैन से दैट दिस इज योर क्रिटिकल फ्लोर. ठीक है, जहां से तुम्हारा एग पहली बार ब्रेक हुआ. थ्रेशोल्ड फ्लोर तुम्हें बताना है. ठीक है, तुम इसको थ्रेशोल्ड फ्लोर भी कह सकते हो. तो बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन है किस चीज का,
तो मैं वर्स्ट केस में मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने हैं सच दैट कि तुम ये क्रिटिकल फ्लोर बता सको, ठीक है, फाइन। अब ये इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है वर्स्ट केस और मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो ये समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं वर्स्ट केस मेरा हो क्या सकता है, तुम जस्ट इमेजिन योर वर्स्ट केस फॉर दिस प्रॉब्लम। वर्स्ट केस तुम्हारा क्या हो सकता है कि सपोज ये तुम्हारी बिल्डिंग थी, ठीक, हम वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम का। ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये उसमें कुछ कुछ फ्लोर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने बोला कि मैं आया और मेरे पास मान लो 2x थे, ठीक है, 2 वैल्यू ऑफ ई इज 2। मैंने बोला कि मैंने एक एग लिया, मैं 8th फ्लोर से चेक करना शुरू किया और मैंने यहाँ से एक एग ड्रॉप किया और वो एग ड्रॉप होने के बाद टूट गया, ठीक है। अब न्यू वैल्यू ऑफ एक्स जो मेरे पास बचे हैं वो कितने बचे ई, और अभी मुझे क्रिटिकल फ्लोर नहीं पता और मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1। मैं आया जस्ट 7 में, मैंने 7 से फ्लोर पे ड्रॉप किया एग, वो भी टूट गया, ई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, बट अटेम्प्ट्स कितने हो गए 2। अब मुझे अभी भी क्रिटिकल फ्लोर या थ्रेशोल्ड फ्लोर नहीं पता। अब मैं 6 में जैसे ही आऊँगा, 6 से कुछ भी ड्रॉप करने के लिए मेरे पास वैल्यू बची, एग बचा, कुछ भी नहीं है, तो आई कांट फाइंड आउट कि मेरा क्रिटिकल फ्लोर क्या है, ठीक है। और यू कैन से इन दिस केस जो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एक्स हैं उसके बराबर हो गए, ठीक है। और मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता चला कि मेरा जो क्रिटिकल फ्लोर है वो मुझे मिला कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी एनोनिमस कंडीशन हो गई। और ये अगर तुम बोलो कि मैं निकाल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं निकाल रहा हूँ मिनिमम अटेम्प्ट, ठीक है, मिनिमम अटेम्प्ट। मिनिमम अटेम्प्ट निकालने के लिए मैं एक चीज़ तो मेक श्योर करूंगा कि जो मेरे नंबर ऑफ एक्स हैं वो मेरे पास हमेशा रहे ही रहें, ठीक है। सारे के सारे टूट के मेरे नंबर ऑफ एक्स 0 ना बन जाए और मुझे क्रिटिकल फ्लोर भी नहीं पता, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं, अगर मैं फर्स्ट से शुरू करूं, मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया, मैंने यहां से एग ड्रॉप किया और एग ड्रॉप करने के बाद वो मान लो कि नहीं टूटा, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ एक्स कितने बचे 2, अभी भी इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ एक्स 2 थे, ये चीज़ मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्स मेरे पास अभी भी कितने बचे 2, लेकिन अभी मुझे क्रिटिकल फ्लोर नहीं पता, ठीक है, फाइन। अब यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, एग अभी भी नहीं टूटा, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 हो गए, ए इज इक्वल्स टू 2, बट नंबर ऑफ एक्स भी मेरे पास 2 हैं। मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मैंने लास्ट में आके 8th से ड्रॉप किया, ठीक है। और मैंने ये बोला कि यहाँ पे भी मान लो एक्स, एक एग मेरा टूट गया, ठीक है, ये हाईएस्ट फ्लोर था और एक एग यहाँ पे मेरा आके टूट गया और यही मेरा क्रिटिकल फ्लोर है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ एग बचेगा ही बचेगा, है ना। या तो मेरे पास एग बचेगा, या फिर अगर मेरे एग ऊपर की तरफ आते आते 0 भी हो गए कहीं पे, तो मुझे क्रिटिकल फ्लोर मिल जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल फ्लोर क्यों मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक कंडीशन और आपको बताई थी वर्स्ट केस, ठीक है। वो वर्स्ट केस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। मैंने सिंपली बोला क्या, जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट फ्लोर से, मैंने फर्स्ट फ्लोर पे चेक किया कि मेरा एक एग, अभी यहाँ पे कोई भी एग नहीं टूटा, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते गए। दूसरा फ्लोर चेक किया, तीसरा फ्लोर चेक किया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जैसे ही मेरा कोई भी एक एग टूटेगा, मैंने बोला इस फ्लोर में टूटा, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ एक्स बचे 1, बट मुझे वहीं पर पता चल गया कि ये मेरा क्रिटिकल फ्लोर आ गया, है ना। कहीं पर भी मेरी एनोनिमस कंडीशन नहीं आई, कहीं पर भी मेरी एनोनिमस कंडीशन नहीं आई दैट एक्स मेरे पास 0 हो गए हों और मुझे अभी क्रिटिकल फ्लोर नहीं मिला, ठीक है। तो ये इस केस में तुम यहाँ से एग्जैक्टली इजीली सी कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं अगर नीचे से चलूँ तो मेरा बेनिफिट है, ठीक है। मेरे नंबर ऑफ एक्स 0 होने से पहले मुझे मेरा क्रिटिकल फ्लोर का आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं, वर्स्ट केस की हम बात कब कर रहे थे। सपोज मेरे पास ई इज इक्वल्स टू 1 है,
नंबर ऑफ एग मेरे पास एक ही है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है और मुझे उसी में पता करना है कि क्रिटिकल फ्लोर कौन सा है। ठीक है, इस केस में देखो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि मैं सारे फ्लोर्स पे जाके एक एक बार अटेम्प्ट करूं, सारे फ्लोर्स पे एक एक बार जाके अटेम्प्ट करूं और जो मेरा क्रिटिकल फ्लोर है वो मुझे यहां पे मिले। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल फ्लोर है, मैंने यहाँ पे चेक किया, मेरा एग बचा हुआ है अभी भी e इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे, और जब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने एग फेंका और अब e इज इक्वल्स टू 0 हो गया। बट मुझे यहाँ पे आके मेरा क्रिटिकल फ्लोर मिल गया, क्योंकि मेरा जैसे ही e इज इक्वल्स टू 0 हुआ मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इस फ्लोर में एग फूट रहा है, इस फ्लोर से फेंकने में। ठीक है, मेरा जो एग था वो फूट गया, तो मुझे यहाँ पे क्रिटिकल फ्लोर मिल गया। और ये मेरा वर्स्ट केस भी है, वर्स्ट केस दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम है यहाँ पे, क्योंकि तुम ऑब्वियसली हर फ्लोर पे एग्जैक्टली एक ही अटेम्प्ट करोगे चेक करने के लिए कि उस फ्लोर से जब एग फेंक रहे हो वो टूट रहा है या नहीं, ये चीज़ कन्फर्म है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्लोर्स, दैट इज नंबर ऑफ फ्लोर्स। दैट्स वाई हम यहाँ पे कहते हैं हमने वर्स्ट केस कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि एटलीस्ट हमें हर केस में आंसर तो मिल ही जाए। ठीक है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो मिल ही जाए, कोई भी ऐसा केस ना आए जब हमें आंसर ही अपना नहीं मिल रहा। ठीक है, तो किसी भी वर्स्ट केस में कोई भी केस ऐसा हो, कभी भी तुम्हारे पास अगर नंबर ऑफ एक्स 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें आंसर ना मिले। ठीक है, कोई भी वर्स्ट केस, कोई भी ऐसा केस होगा उसमें तुम्हें एटलीस्ट ये वैल्यू तो मिल ही जाएगी, दैट इज के, कि तुम हर फ्लोर में जाके एक एक बार चेक करो और तुम्हें क्रिटिकल फ्लोर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वर्स्ट केस हम क्यों बोलते हैं वर्स्ट केस फॉर मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो इसीलिए क्योंकि ये जो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या हो सकती है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। सो किसी भी केस में अगर तुम्हारे पास एक एग भी है तो तुम उसमें पता लगा सकते हो हमेशा कि तुम्हें क्रिटिकल फ्लोर कौन सा है या फिर तुम्हारा क्रिटिकल फ्लोर कौन सा है। ठीक है, दैट्स वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट वर्स्ट केस। सो यहाँ तक आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों की एग्जैक्टली क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें गिवन थी, दैट इज नंबर ऑफ एक्स, सपोज एक्स की वैल्यू 3 थी और फ्लोर और नंबर ऑफ फ्लोर्स उसकी वैल्यू आई गेस सपोज के की वैल्यू 10 थी। ठीक है, फाइन। और मैंने बोला कि मुझे हर केस में अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो मुझे वहाँ पे आंसर मिलने ही वाला है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस। फाइन, अब मैंने ये एक बिल्डिंग बनाई, हम इसको एग्जैक्टली पढ़ कहाँ पे रहे हैं, हम इसको एमसीएम की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी और हम उसी पे ये प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता क्या था, हमारे पास एक रेंज होती थी और एरे या स्ट्रिंग होती थी, दैट इज हम आई लेफ्ट हैंड और जे राइट हैंड बना लेते थे और हम उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करते थे और जिसमें भी हमें अपना मिनिमम आंसर या मैक्सिमम आंसर मिलता था हम वो वाला केस कंसीडर कर लेते थे। तो इसमें हम वो चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो चीज़ कैसे हमें दिखेगी, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड 9। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मैं अगर बोलूँ आई है और ये मैं बोलूँ जे है। ठीक है, और मुझे हर फ्लोर में मैं हर फ्लोर को एक एक बार क्रिटिकल फ्लोर सपोज करूंगा। ठीक है, या फिर मैं हर फ्लोर को एक एक बार करंट प्रॉब्लम सपोज करने वाला हूं। ठीक है, देखो सपोज मैं यहाँ पे हूँ अभी और ये फ्लोर जो है वो केथ फ्लोर है, मैंने यहाँ से अगर एक एग फेंका, अब दो पॉसिबिलिटीज है मेरी, दैट इज इधर इट विल ब्रेक और इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, दोनों केस कंसीडर करते हैं। अगर वो एग ब्रेक हो गया, इस केस में मेरे पास रिमेनिंग एक्स कितने बचेंगे, ऑब्वियसली e-1, क्योंकि एक एग मेरा ब्रेक हो चुका है। ठीक है,
अब अगर मेरा 5th फ्लोर पे दैट इज केथ फ्लोर पे एग ब्रेक हो गया है तो ऑब्वियसली 6th 7th 8th 9th उसके ऊपर वाले सारे फ्लोर्स पे वो एग ब्रेक हो ही जाएगा, इट इज ऑब्वियस है ना। तो 6 से ऊपर वाले जितने भी फ्लोर्स हैं क्या वो मेरे क्रिटिकल फ्लोर्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहां पे तो हमेशा मेरा एग जो है वो ब्रेक होने ही वाला है, और मिनिमम फ्लोर मुझे अभी तक कौन सा पता है जहां पे एग ब्रेक हुआ है, वो है 6th फ्लोर, सॉरी मतलब ये वाला फ्लोर मेरा जो के 8th फ्लोर है, ठीक है फाइन। अब दूसरी चीज देखो कि जो 5th के नीचे फ्लोर है दैट इज ये वाले फ्लोर्स, क्या इन फ्लोर्स में मुझे चेक करना पड़ेगा? स्टिल ऑब्वियसली यस, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता है कि जो मेरा ये वाला फ्लोर है क्या यही मेरा क्रिटिकल फ्लोर है या नहीं, क्रिटिकल फ्लोर है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि इसके आगे जो 4th फ्लोर है उसमें भी एक ब्रेक हो रहा हो, 3rd फ्लोर में भी एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो 3rd मेरा क्रिटिकल फ्लोर हो, तो स्टिल मुझे e-1x के साथ कितने फ्लोर चेक करने पड़ेंगे? k-1 फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा kth फ्लोर में एक ब्रेक होता है तो मुझे ये कंडीशन या फिर यू कैन से ये एक सब प्रॉब्लम मेरी P1 बन जाती है जो मुझे चेक करनी पड़ेगी, दैट इज मुझे e-1x के साथ k-1 फ्लोर्स स्टिल चेक करने हैं, फाइन। अगर यहाँ पे मेरा एग ब्रेक नहीं होता है तब देखते हैं कौन सा केस बनेगा। अगर यहाँ पे मेरा एग ब्रेक नहीं हुआ दैट इज kth फ्लोर में, तो मुझे कौन कौन से फ्लोर चेक करने पड़ेंगे? मुझे ये वाले फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एग ब्रेक नहीं हुआ तो इसके नीचे भी कहीं पे एग ब्रेक नहीं होगा, तो कहाँ पे ब्रेक हो सकता है? इन वाले फ्लोर्स में। तो ये बचे हुए फ्लोर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं? के माइनस ये वाला फ्लोर, इसको मैं के डैश लिख लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। और एग्स मेरे पास कितने बचे हुए होंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरा एग ब्रेक नहीं हुआ तो वो होगा ई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा P2 सब प्रॉब्लम। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने करंट स्टेट के लिए कंसीडर कर ली हैं। अब मुझे एग्जैक्टली इन दोनों पॉसिबिलिटीज में करना क्या है? ये दोनों पॉसिबिलिटीज है करंट स्टेट के लिए, एग ब्रेक हुआ या नहीं ब्रेक हुआ, मुझे इनमें से वर्स्ट केस लेना है। वर्स्ट केस होगा कि मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देंगे ना ये मुझे, ठीक है। तो इन दोनों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में मैं मैक्सिमम ले लूं, दैट इज e-1 और k-1 का, और दूसरी सब प्रॉब्लम मेरी क्या है? P2, दैट इज ये e और k-k डैश, ठीक है। मुझे इस करंट स्टेट का मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। अब मैं ये वाला करंट स्टेट चेक करूंगा, फिर मैं ये वाला करंट स्टेट चेक करूंगा, फिर ये वाला, और सब करंट स्टेट्स में से जो मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी? आंसर, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने, ठीक है। तो अभी तक अगर ये थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है तो जब हम इसका कोड देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ये MCM कैसे हुआ ये आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास एक लेफ्ट एंड है और एक राइट एंड है, ठीक है। और हम उस लेफ्ट से राइट एंड में सारे पार्टीशंस चेक कर रहे हैं या फिर सारी करंट स्टेट्स चेक कर रहे हैं, और उस करंट स्टेट में सारी करंट स्टेट्स में हमें वैल्यू क्या निकालनी है? मिनिमम। दैट्स वाई यू कैन से दैट दिस इज अ वेरिएशन ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमें रिकर्जन लिखना है। सबसे पहले रिकर्जन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस केस, और बेस केस के बाद जो उसके रिकर्जन कंडीशन थी वो हमने ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। तो बेस केस लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि बेस केस कैसे पता करते हैं हम, ऑब्वियसली जो हमारे स्मॉलेस्ट इनपुट्स होते हैं फंक्शन के, स्मॉलेस्ट फंक्शन में इनपुट्स क्या क्या है? पहली बात तो नंबर ऑफ एक्स और फ्लोर्स, तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं। नंबर ऑफ एक्स तुम्हारे अगर 0 हो गए, मान लो n यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स है और k जो है वो नंबर ऑफ फ्लोर्स है, नंबर ऑफ एक्स अगर 0 हो गए तो तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली ये इनवैलिड केस है। तुम इसमें क्या कह सकते हो कि जो तुम्हारा आंसर है वो इंट मैक्स है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम्हें इनफाइनाइट लगेंगे, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या है? अगर नंबर ऑफ एक्स 1 हो गए, इस केस को मैंने एज अ वर्स्ट केस बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ एक्स 1 है तो मुझे वर्स्ट केस में कितने फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे? सारे के सारे फ्लोर्स। तो उस केस में जो तुम्हारा आंसर है सारे के सारे फ्लोर्स, दैट इज के आंसर हो जाएगा। अब मुझे बेस केस लेना है नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए। तो सपोज इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि मेरे नंबर ऑफ फ्लोर्स 0 हों। नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर 0 हैं तो मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने लगेंगे मुझे चेक करने के लिए? मुझे एग कहीं से फेंक कर ही नहीं देखना, तो 0। नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर 1 है तो मुझे खाली उसी से फेंक के देखना है और वहीं से वो एग ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि मुझे आंसर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, एग मतलब ब्रेक होगा ही होगा।
या फिर क्रिटिकल फ्लोर हमारे पास होगा ही होगा। तो अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स 1 है तो वही मेरा क्रिटिकल फ्लोर है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1। ठीक है, तो ये चारों मेरे बेस केस मुझे मिल गए हैं। अब मुझे खाली सारे के सारे केसेस रिकर्जन में लिखने हैं। तो सिंपली आओ, ये नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए बेस केस लिखा, अगर k इज इक्वल्स टू 1 या 0 है तो सिंपली रिटर्न k, अदरवाइज इफ n इज इक्वल्स टू 1 है इट मीन्स वी हैव टू रिटर्न टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। ईजी सी चीज़ है कि मुझे सारे के सारे फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, और वर्स्ट केस में मुझे सारे फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे। फिर n इज इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ पे कोई केस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 में ही ये रिटर्न कर देगा सिंपली फंक्शन। नीचे आए, मैंने एक आंसर ले लिया वेरिएबल min, जिसमें मैंने इम्पॉसिबल आंसर स्टोर कर दिया फॉर नाउ, दैट इज इंट मैक्स। ठीक है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मैंने फिर 1 से लेके अप टू k फ्लोर तक सारे के सारे फ्लोर्स में एक एक बार गया और करंट स्टेट का आंसर मैंने कैसे बताया था, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एग ब्रेक हुआ या नहीं ब्रेक हुआ। अगर एग ब्रेक हो गया तो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने बचेंगे, n-1, और बचे हुए फ्लोर्स जो हमें चेक करने हैं दैट विल बी x-1। सेकेंड सब प्रॉब्लम कि एग ब्रेक हो गया, वो अगर हो गया तो मेरे टोटल नंबर ऑफ x n-1 ही बचेंगे। सेकेंड है कि एग ब्रेक नहीं हुआ तो टोटल नंबर ऑफ एग्स n, और बचे हुए फ्लोर्स जो मुझे चेक करने वो कितने हो जाएंगे, k माइनस एक्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स माइनस करेंट फ्लोर। उन दोनों का मुझे मैक्सिमम लेना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैक्सिमम मैंने क्यों लिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस। ठीक है, तो वर्स्ट केस में जो करंट प्रॉब्लम्स की जो वैल्यू है वो मैक्स होनी चाहिए। ठीक है, और फिर वर्स्ट केस से भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेने, दैट्स वाई मिनिमम अपने जो आंसर है उसको हर वैल्यू से अपडेट करते जाओ या हर करंट स्टेट से अपडेट करते जाओ। और ये लास्ट मैंने +1 क्यों किया, ये सिंपली समझ लो। सपोज ये मेरी बिल्डिंग थी, मैं यहाँ पे आके इस करंट स्टेट के लिए दो मैंने पॉसिबिलिटीज़ तो ले ली। ठीक है, दैट इज इसमें चेक करने के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और इसमें चेक करने के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, प्लस मैंने यहाँ पे भी तो एक अटेम्प्ट किया था एग गिराने के बाद, एक अटेम्प्ट यहाँ पे भी मैंने किया था, है ना, तभी मैंने इसका और इसका डिवीजन किया। तो +1 इज फॉर दिस अटेम्प्ट। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक बार ब्रीफ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इसका रिकर्जन का मेमोराइजेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। और तब तक के लिए इफ़ यू हैवेंट चेक्ड newtonschool.co जस्ट गो एंड चेक देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। एंड सिंस अभी तक इसकी फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की एप्लीकेशंस ओपन है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ़ यू वांट टू, और इफ़ यू वांट टू गेट प्लेस्ड इन दीज कंपनीज फॉर मिनिमम 5 lakh CTC। And most amazing thing is you don't need to pay even a single penny until you get placed. Second thing, if you haven't checked their Launchpad initiative for free learning, absolutely free learning, just go and check it. And if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this for regular updates. Thank you guys for watching.